चैट जीपीटी, तो काफी लोग उसी को एआई समझ रहे हैं. Welcome, sir, to the podcast. So, just audience के लिए, sir is an AI semiconductor expert. Just flipping the coin to you, like how are you at the moment? कैसा चल रहा है अभी? तो अभी अच्छा चल रहा है. Like I work for this company called Cadence Design Systems in my professional life. For myself, like I do investing, angel investing वगैरह करता हूँ, and then तो वो भी काफी अच्छे चल रहा है. दोनों चीजें काफी अच्छी चल रही है. एआई साइड में आई एम ट्रेनिंग एलएलएम्स फॉर माय ओन कंपनी. मतलब इट्स नॉट लाइक यूजिंग द एपीआई ऑफ चैट जीपीटी, तो काफी लोग उसी को एआई समझ रहे हैं. बट फाइन ट्यूनिंग एलएलएम्स फॉर आवर इंटरनल यूज केसेस एंड एंजल इन्वेस्टिंग वाली साइड में भी काफी कपल ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो let's start with this only. आपने अभी बताया कि जैसे चैट जीपीटी है और काफी लोग उसी को एआई समझते हैं. So, पहली चीज उसी पे आते हैं कि chat gpt, when we say chat gpt is there building an AI, what exactly chat gpt is? अच्छा, बेसिक टर्म्स में बताऊं तो इट्स लाइक अ पैरेट which has very big kind of मतलब हमने उसको we have given it a large memory in terms of weights, and it has just each token after another token, like a word after word in simple terms. तो it has उसने उसका अच्छी तरीके से रट्टा मार लिया है, right? ये इन्होंने बड़े स्मार्ट वे में काइंड ऑफ वो ट्रेन किया है. सो इट्स मॉडल इज वेरी लार्ज. So it has started showing some, capabilities of a bit of memory, and कि एक वर्ड के बाद मुझे दूसरा वर्ड क्या जनरेट करना है. So if you ask about, anything, like, so it'll just keep on, repeating from the text that it has seen. Coming to it, like लोगों को लगता है कि यार ये तो मतलब कैसे ट्रेन किया होगा, right? So that is a bit of, तो उन्होंने उसमें काफी कुछ स्मार्टर वे में, it's like they have given it a lot of text. So the first part is called pre-training, then instruction fine-tuning, and then human alignment, like RL based human alignment, human feedback based. So in the pre-training aspect, almost 98-99% of the training happens. The data is pre-trained. So it's like you just give it to the random text, books, blogs, whatever, right? Amount of code, like. So if the task is to just learn the whole thing, like if the cat sat on the mat, the cat, then it learns the kia. It's highly probable that the next word will come, the sat, and like that, right? So it has उसका पूरा रट्टा मार लिया, ठीक है. And then the second part of the training happens is instruction fine tuning. So instruction is like you are training it to generate, answer some of the questions. Like you give a question and the model's task is it to not auto complete but generate the answer, right? And you have given him some of the golden answers and all. So and then and despite that, it requires that their answers are being generated, but some of the answers are good and some of the answers are bad, right? So you score them like on a scale of 10, or you just give positive or negative. Then you do preference alignment, like I prefer this answer over this answer. ये भी आना स्टार्ट भी हुआ है जीपीटी में ना कि वो दो ऑप्शन देता है विच यू विल प्रेफर. Right. So it's curating the data for its next round of training. सो इट्स काइंड ऑफ कस्टमाइजिंग एज पर मी, लाइक कि मैं कौन सा प्रेफरेंस चूज कर. But like collaborative customization. So there are multiple people who are, some have rated some have rated some. Then there is a averaging out, and then kind of preference alignment that this should be generated and this. बट डोंट यू This is थिंक कि जीपीटी ने जितने लोगों की मदद करी है, देयर आल्सो हैज अ रिवर्स साइड, लाइक कि जो वाटर यूसेज दैट वी से कि भाई डेटा ट्रेन करने के लिए कितना एनर्जी एआई विल टेक इन, that has been a key challenge in the other side of the GPT. What do you think about that? How that has? नहीं, वो शुरुआत में होता है, like whenever a new technology comes, right? So it is not that efficient. Like how hardware is not made as per its own training, and initially also there is इतने अच्छा, मतलब सॉफ्टवेयर स्टैक भी इतना अच्छा नहीं है, right? So
as it is getting improvised, Hmm. then the resource requirement it's getting reduced. Hmm. ठीक है. और फिर शुरुआत में लोगों को लगा कि दैट दिस NVIDIA's thing कि हर किसी को everybody will be needing that kind of hardware, Hmm. right? किसी को GPU चाहिए होंगे. हर enterprise can't open source their data, right? So they need to invest, purchase GPUs, do all this computation by themselves, and then build their own model, and then they'll be able to do anything, right? But the Meta came up with this, open sourcing the whole thing, Hmm. changed the whole paradigm. That right, that we need to train one company train first for general purpose, and enterprises or professional players, specialized players can retrain it or fine tune it for their own uses. अब retraining and fine tuning में the community came up with very innovative ideas. It's not like you need to, if you are fine tuning the model, so you do not need to train the whole layers, right? You just fixate the model in itself, and then you add couple of adapters, which is called these days low rank adapters, LoRa. And there are various versions of LoRa. Then and then QLoRa came up, which further reduced the requirement of efficient fine tuning. So that's one way. Second way is it's like in context learning. So model initially had smaller context, like context is like at the time of answering your question, you provide some context to it, right? In Hmm. terms of examples, right? That I want my answer from this document, Hmm. right? So that size has increased by, like, initially it was 2048 tokens. Then open source, then it became 4096. Latest Llama 3.1 is 1 lakh 28,000 Hmm. uh, size. So it's like 40 pages of text. Then if you go by, so they are long. People have fine tuned it to the Yeah. version very long context thing. And this in context thing, there is another thing that is going on. It's like retrieval augmented generation. So what you are doing, you are not training the model. You are not even doing the parameter efficient fine tuning, right? What you are doing is that you just you retrieve the right information required to answer this question, right? So there they have created uh, embedding space. I'll say for like a knowledge base, and that knowledge base is like there is a model which just has indexed your data into mathematical representation, right? Hmm. 1-0 kind of. 1 0 kind of. So there is a very long vector, and then so that's called embedding. Hmm. So each paragraph has been chunked, and it's been like that has a mathematical representation in some Hmm. the 1001. It's like minus 0.5. It's Hmm. like mathematical numbers. And then whenever a question comes, and then you pass that question to that model, it gives you another vector. So it's like, so one vector. So all the paragraphs which are nearest to these questions, mathematical space, right? So you just fetch it, that everything, the nearest, the subset of your data set into the context of the model, Hmm. right? That answer your question from the, or answer this query on the provided context only. Hmm. And so it just goes through all this question and context, and then it answers. So this is another way this is called RAG, retrieval augmented generation. So these are two things which are quite popular, and enterprises are doing one or two, and some like us who are not only doing parameter efficient fine tuning, but we are fine tuning the whole model by itself. And then we have our RAG, which is kind of so if you build your model by fine tuning and then having a RAG also, then What is a RAG for the audience? so RAG is retrieval augmented generation. That's Hmm. I tried earlier. Like you ask a question, the in context answers are coming, and then you just on the model is generating your answer on the basis of retrieved context. So Okay. it's like retrieval
augmented generation. So RAG is basically for context, getting context of the things. Right. Yes. 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 Okay. Okay. Even just a recent incident that happened. So मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था and he's building something in creator economy. By the way, not Nikunj. So so the thing was, I asked him, "Do you guys have?" I wanted to ask, "Do you have LMS kind of system?" Right. And I wrote him LLM because Yes. अभी सारे में वही चल रहा है like LLM models and all of that thing. My mind was like, yeah, LLM, yeah. Our lingo is also, getting auto completed. So that was the thing. But yeah, since we are talking about Chat GPT and all of that, right? So there is one more thing that I think in the GPT has been right. You rightly pointed out context, but analyzing, giving out images as well as the context reading, documents reading and all of that, that has been also scaling to a next level extent, I would say. Like for us, I had a chat with a bunch of the guys who are working with funds. What they do, Right. they used to create memos and all of that. Right. So what they do is they give it to Chat GPT, their PDF. They say, "Hey, give me out a memo." They give it out a memo. Obviously, it's not perfect, but they get the things out and they make it adjustments to that, and that's the finalized thing. So, what do you think in that manner? What is the next thing that GPT will do uh, that Right. that is left out currently? तो फिर तो एक तीसरी चीज और है इसी लाइन में, Hmm. which is agentic framework, agents. Sorry. Yeah. Right. So agents are like, Hmm. let's say I have multiple instances of the model, Hmm. and every instance is specialized to do a particular task. Acha. Right. So one agent does coding, Hmm. one agent does planning, Hmm. one agent does answering questions on some documentation. Hmm. One agent does maybe the code is generated, it executes, and then it checks the code, Hmm. it does initial linting and all, Hmm. and then one is the rag agent Hmm. itself, and on top of it there is a smart router which decides that which task should be Allotted to which agent? to with, and then output comes, and then you Hmm. do. अच्छा, एक चीज और मैं बताता हूँ आपको, मतलब दैट लोगों को लगता है कि यू आस्क ए जनरल क्वेश्चन, राइट, Hmm. एंड इट राइट, ठीक है, इट विल फेल, बट given this whole agentic thing, let's say you have fine-tuned a model, then you have RAG also, you have multiple adapters of Hmm. multiple tasks, you have built an agentic system. But ultimately, let's say you have a CRM software or Hmm. a software like us, like in my cadence, Hmm. which is a analog designing, chip designing software, right? So there, this whole set Hmm. of your ground is kind of limited, Hmm. right? So in that sense, it becomes very, like, I'm saying, like it'll have huge impact, and less जो accuracy वाली problem है ना, वो वहाँ काफी कम हो जाती है, Hmm. because you have fixated कि भाई, जैसे let's say somebody is booking an appointment via CRM, Hmm. for an example. So it's like we need to, provide details, face this, right name, agent, ye, wo, something like that, right? Or a staff detail, or maybe like building a reception sort of Hmm. thing. So you just provided a line that I want to this, do that, cut. And maybe it's like people have the speech also incorporated. Lambda S is also open source. Hmm. So it's like it has huge impact in terms of automation, Hmm. where the ground, well, basically people will use in their own software offering, Hmm. and the whole thing will become kind of quite accurate in that sense. Hmm. If you limit it to for your own purposes only, so it's good. Gotcha. Gotcha. Yeah, I also think that automation will be, enhanced by multiple times with AI. But when I also see tools like Hagen, I don't know if you might have heard of it.
क्या हेजन? HeyGen. So what it does is, like, suppose I'm a creator, right? So I heard it राइट. from Varun Maya. He's a content हाँ. creator. He has excelled in AI for using content creation. अच्छा. So what it does is basically, जैसे अभी अपन बात कर रहे हैं तो सिंगल कंटेंट जाता है सिंगल पर्सन का, so that is completely created by AI, his content. राइट. Not all, obviously, he some content, but he does that. What he does, पूरा AI can generate करता है. Even audio, he uses that, another tool for audio, and that he mixes it up and posts it out. So राइट. he has reduced the content generation time. I was hearing a podcast and he said that the Apple event just happened and everyone used to give a summary of Apple event in like what, 60 minutes, 2 hours. He gave it in राइट. 15 minutes. The हाँ, मतलब दैट वीडियो थिंग एंड, तो क्या ना कि टेक्स्ट का डेटा तो इतना नहीं है जितना डेटा वीडियो का है. hmm, तो यदि जनता वो वाली साइड जो मल्टी मॉडल एलएलएम्स और hmm, मल्टी मॉडल जो आ रही है आज की डेट में, विजन, टेक्स्ट, स्पीच, एवरीथिंग इज इज जस्ट वन प्लेस, hmm, राइट? तो दैट हैज उसका अपना रिवॉल्यूशन होगा, hmm, एंड दैट इज वेयर द होल थिंग इज गोइंग इन टर्म्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन होना. that's because मेरे को वो बहुत fascinating लगा था एज अ कंटेंट, बिकॉज मेरा एक और दोस्त है जो एक हफ्ते तक पूरा एक वीडियो पे काम करता है, बहुत अच्छी वीडियो बनाता है, बट स्टिल 15 मिनट्स और एक हफ्ते में बहुत फर्क है. दैट्स द थिंग. बट या. नहीं, इम्पैक्ट तो है, बट आई वोंट से दैट जैसे मैं कोड करता हूँ, राइट, अपना पर्सनल, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, so we don't use the chat gpt and all, but even we use, I have my own llama endpoint deployed, right? Have fine tuned to generate a special language called a skill, Hmm, which is used by like 70% of the code base is with my company called this Cadence, right? Which is, and 30% all this Intel, Nvidia, Microsoft, and all that. So even for my own task and all, I generate the code. For like if I need to write some code in Python or do some machine learning hmm, task, so just ask it and then it generates the code, some boilerplate. And it's not right 100% hmm, right, but you know, since you know that what needs to be fixed, hmm. right? That cycle for me is like 5 days or 6 days. It has certainly been reduced to 1 to 2 days. That's true. That's true. That's true. 100%. Do you also, जैसे कि अभी AI में भी जो in ChatGPT we give input like creation of an or something, maybe in Dream Journey or some, I am pronouncing it right or not, but yeah, in Chat. So that images will also in future will be having a license or a unique number, because abhi to we use them like they are unlimited, they do not are owned by anyone. But do you think in future the curiosity or maybe you can say uniqueness of AI to generate a unique image will be lesser? Right. तो ये उस सेंस में हो सकता है. See, I have my own data set, Hmm. right? So whatever I'll generate, Hmm. let's say I have a large enterprise Hmm. which has collection of private images Hmm. and or maybe proprietary images which are Hmm. not everyone can use. If they want to use, they need to pay me. Hmm. So if I train by myself and the things, I do not make it public, Hmm. right? Because if I generate any newer images on the data set that I have used, and it's certainly been my right, my own generated thing. But if you make a model public and you are asking and giving it some prompt to generate Hmm. something, right? So there it becomes a kind of question of debate. So initially the chat GPT was like that everything that will be generated will be the proprietary Hmm. of, right? And then lately, then they corrected themselves, right? Because it has element of you are asking it to behave in a certain way, Hmm. and then there is a data itself, and data is not itself is whole, everything belongs to check the OpenAI, right? So in that sense, if I have my own data, I have retrained it on my own fine-tuned data, and then I'm generating something. So you don't have access. So certainly I can claim this my right. It's my own property. Hmm.
My question was highly motivated by the fact that that what I've been reading around, that in the next 4 to 5 years, due to a lot of data being generated by AI, there would be a lot of data that would be polluted. That would be not will be just original data, but also will be having an AI element too. So Right. Yes. how do you see that impact on generating new? Uh, So a lot of this is already been like people are writing codes or people are writing emails, text, everything, even sending messages, right? For your case, like images, videos, people are incorporating that thing. Yeah, so there will be a lot of data will be. So this new data, I won't say is a polluted data. It's just extension of the previous data. It's like some mix and match. So it's like a curry, you know, yeah. some different kind of recipe, but it has its own previous mixing. Mm, I see. I see. Now, since we are talking about like AI, or specifically ChatGPT, let's zoom out a bit. So, since you also said you do investments, right, and in fact in startups and all of that, so I think AI would be one of the core in that, since you hold expertise in that. Right. Yes. So, so in the recent years, lot of AI startups have been coming up. I have Hmm. this data which is of NASCOM, which says in 2023 there was somewhat around 550 plus startups. Now in 2024 there are somewhat around 2900 plus startups Right. in Gen AI. Yes. So what do you think the race is of? What? Because I see most of the people are either creating, the same, getting, as you said in the beginning, कि भाई GPT का ही module लगा दिया उसमें, and they are just building anything on that, or like what is an opportunity in this AI space to create on, and how they can enable an AI tool actually, and how many startups do you think कि 2900 में से एक्चुअल में काम कर सकते हैं, कुछ जो बड़े बन सकते हैं? तो लेट्स से देयर इज एक मतलब मेरी मतलब इन्वेस्टिंग से ही है मतलब दिस आइडिया दैट द नंबर वन प्लेयर देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन नंबर वन प्लेयर एंड द नंबर टू. हम्म. ठीक है. और जो नंबर वन वाला टेक ये जनरली टेक में और बाकी जगह भी करता है somebody has strategic advantage or something तो नंबर वन नंबर टू में काफी गैप है. हम्म. एंड इस वाले केस में ये है कि एनी नंबर टू हम्म. पीपल या तो आपके पास ऑलरेडी डेटा हो अपना एंड यू आर यूजिंग इट फॉर योर own productivity and you are utilizing your own models so enterprises are safe. Let's say there is company called OpenAI and some other company come हम्म. starts using or giving services around that itself. हम्म. Say take example for Perplexity. हम्म. ठीक है. तो Perplexity में OpenAI का इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, फिर काफी लोगों ने पैसा डाला, लाइक they had some very rare kind of system running across the internet and all, right? हम्म. But they are initially using the chat GPT APIs before the and they have multiple models running हम्म. in behind. ठीक है. What this guy did, OpenAI came with search GPT. हम्म. The main problem with this Perplexity is that ठीक है आप you are asking something and it is giving you multiple results and all, right? And OpenAI saw an opportunity. What stops them to build themselves? हम्म. So they came up with this search GPT. They are tackling Google and they are if I'm looking for a concrete answer to search the internet and provide me the right answer, right? I do not want actually asking the question to Perplexity or something to search the internet and provide me the right answer, right? हम्म. I do not want this whole text and everything, Yeah. right? तो ठीक है उसने people have started looking. So what stops OpenAI that if anything is built which is for mass consumption to build by themselves, हम्म. ultimately they are also a profit making entity. इतना पैसा ले रहे हैं जनता से तो they'll do it, right? तो अच्छा, तो सर्विसेज वाला गेम जो मुझे लग रहा है कि unless until you have something specific or better than OpenAI, right? एक रॉक है कि that they have their own
like infrastructure that कि आप बहुत जल्दी you get the very high inference speed of your models of these open source models, right? तो they have something, right? तो वो वाले गेम में मतलब it's I don't think like there will be open AI or they will someday will be profitable, will be like people are not throwing their backs मतलब in the hay, तो ऐसा नहीं है। अब बाकी के दो गेम आते हैं। एक है कि कंपनीज आर सो दीज आर एंटरप्राइजेस, दे हैव लॉट ऑफ देयर डेटा, so they'll be training their own models, they'll be needing some services ultimately, मतलब ऐसा नहीं है देयर इज टैलेंट की तो हमेशा कमी है, ऐसा तो नहीं है, राइट? तो ultimately they need to fine tune or something. Meta has this llama stack and all, right? Ultimately companies are coming up with their infrastructure companies which are in specialized people कि आपकी ट्रेनिंग जल्दी हो जाएगी, बेटर हो जाएगी, लाइक अनस्लॉथ है, ऑक्सोटल, लाइक देयर आर मेनी प्लेयर्स, लामा स्टैक है, तो दीज आर, पर उसमें क्या है कि यू कैन नॉट कीप, लामिनी है एक, सो यू कैन नॉट कीप समथिंग सीक्रेट फॉर लॉन्ग. If you are banging on something that I have, so ultimately they need to go some open source way, and then it's very hard to build something called a thing of enterprise scale or something, right? So so ultimately the Facebook has played a very good strategy कि उन्होंने सब कुछ ओपन सोर्स कर दिया, they have this the whole you know developer community and all, so and they are building their own, they're playing the next thing, metaverse. Do you think that would be much more better than OpenAI or something? तो वो कह रहे हैं कि हाँ ये पूरा पूरा गेम अल्टीमेटली वहां जाके कन्वर्ट हो ही जाएगा. अब चीज आती है सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है ये एंटरप्राइजेस के लिए, ठीक है, कि कॉस्ट कम होगी लोगों को, मतलब ओनली प्रोडक्टिव लोग, क्योंकि देखो यदि आप देखो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की सैलरी 4 साल बच्चा इंजीनियरिंग करता है, एक एक पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि क्या करते हैं 4 साल, 5वें साल जाके उसकी नौकरी लग जाती है ना? फिर विद इन 2-3 years इफ ही इज गुड इनफ तो आराम से 10-12-15 और 4-5 साल में तो वो 20-30-40 तक जा रहा होता है, ठीक है? और सिर्फ नॉर्मल कोडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि यू जस्ट आई आर अपडेटेड विद सम टेक्नोलॉजी एंड यू आर जस्ट राइटिंग कोड. ऑन द दूसरी साइड एक हमारे डॉक्टर्स हैं, मतलब यूएस में तो खैर काफी दे आर हाईली पेड, बट जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि बच्चा 5 साल मतलब पढ़ रहा है, फिर उसके बाद वो निकल रहा है, फिर उसको 2 साल एमडी कर रहा है, 1 साल तैयारी कर रहा है, 9-10वें साल में जाके वो बेचारा गेटिंग सम एम्प्लॉयबल एट एट 112 lakh पे काइंड ऑफ सैलरी, और एक इंजीनियर जिसने मस्ती मारी है 4-5 साल में, लास्ट में जाके ही इज अर्निंग ट्वाइस ऑफ दैट. बाद में लाइफ में क्या होता है, इट्स अ डिफरेंट गेम, राइट? तो ये जो भी हो रहा है, एक तो ये एक तरीके से जो सो इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आपको कोडिंग या प्रोग्रामिंग आनी चाहिए एंड यू कैन मेक दैट बिग मूला ऑफ सैलरी, यू ऑल्सो हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ बिट ऑफ मैथमेटिक्स, आपने इंजीनियरिंग अच्छी तरह करी है. अब ऐसा नहीं है कि यू आर ए वेरी गुड रिसर्चर, राइट? मैथ्स वगैरह सब अच्छी है, लेकिन बट यू कैन नॉट कोड एंड रैपिडली प्रोटोटाइप, तो फिर आप गेम से बाहर हो. मतलब आपको यू हैव टू बी काइंड ऑफ 70-80% in top quartile in I'm not saying you have to be best, but in top quartile in both the worlds. Yeah. I see. That's nice. That's true. तो होगा ये कि जो हो भी रहा है कि जहाँ 10 लोग चाहिए थे, राइट, और लेट से एंटरप्राइजेस 10 रुपए खर्च कर रही थी, तो मेरे हिसाब से बड़े प्यार से वो 3 या 4 ही लोग चाहिए होंगे, टॉप टैलेंट होगी. हाँ, और उनको जैसे वो 1 का 2 दे देंगी, तो 4-8 20% उनका प्रॉफिट बढ़ गया, राइट? उनकी सिरदर्दी कम हो गई, 100% इनकी सैलरी बढ़ गई. उनकी बढ़ गई, या
तो आपको मतलब लाइक तो वो डिफरेंस जो है तो वो दैट विल बी अ बिट वाइड एंड ठीक भी है यार, आदमी लोगों को थोड़ा यू नो अब और भी तो और चीजें क्रिएट हो रही हैं, इफ यू आर गुड इनफ इन डूइंग यू नो थिंग्स दैट वी कॉल बकचोदी, तो यार तो इन्फ्लुएंसर बनो। ये राइट, ये जनता काम करती है इस वाली साइड तो में व्हाट डू यू मीन एंड कि मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ डिफरेंट, हाँ तो डिफरेंट चीजें आ रही हैं, नए नए तरीके की चीजें क्रिएट होंगी, तो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है हम्म, और वो होना भी चाहिए। यदि आप देखो जैसे यूएस, जैसे सबसे पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वेस्ट में हुआ, हम्म, राइट, फिर लोगों की इनकम बढ़ने लग गई, हम्म, ठीक है, उन्होंने कहा यार अपना प्रोडक्शन कहाँ करें, ये तो एकदम यहाँ पे कोई हम दिन भर फैक्ट्री में काम करेंगे हम। हम्म, The service sector has grown and so they outsourced the whole हम्म, manufacturing, उन्होंने चाइना बली का बकरा बनाया, हम्म, चाइना में फैक्ट्रियां और ये सब लगा दी। हम्म, अब ना तो चाइना में लोगों का इनकम लेवल बढ़ने लगे, लाइक पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी हमारे यहाँ खत्म है, उनके यहाँ तो बहुत पहले, और मतलब दे हम्म, हैव मिडिल इनकम इकोनॉमी। या, अब वहां पे काम करने को नहीं है कि अब वो भी ऑटोमेशन कर रहे हैं, राइट, तो ऑटोमेशन इज द नीड ऑफ द आवर, हम्म, वेदर इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, आपका विजन वगैरह ये सब, ये इट इज द नीड ऑफ द नाउ, द वेस्ट इज उनको चमक गया है हम्म, कि भाई ये तो कम रोबोट्स और रोबोटिक्स से हो जाएगा, वी डू नॉट नीड पीपल, तो प्रोडक्शन अपने को चीप, जितना सस्ता करना है उतना सस्ता करना है, क्योंकि सस्ते प्रोडक्शन से सिर्फ यही नहीं है कि मतलब you are able to serve a lot of people as well, right? The cost is reduced, it reduces for everyone. या दैट्स ट्रू 100%, 100% दैट्स ट्रू। एंड इवन जब मेरी अभी दोस्त से बात हो रही थी मेरी रिसेंटली, ही वर्क्स इन अ डीप टेक फंड, सो अपन डिस्कस कर रहे थे वैसे ही कि भाई इंडिया का क्या सीन चल रहा है, एआई का क्या सीन चल रहा है, डीप टेक का क्या सीन चल रहा है। तो हम एक चीज, हम मतलब बात करते करते वी वर डिस्कसिंग एंड वी केम टू दैट, इंडिया में एआई जो है, डीप टेक सेक्टर जो है, Mm, दैट हैज कम अ लॉट अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, बिकॉज जो जैसे चाइना का भी हमने एग्जांपल दिया, द इनकम लेवल्स ऑफ द पीपल इंक्रीज्ड, तो उसकी वजह से वहां पे अडॉप्शन बढ़ा। यहाँ पे अभी इनकम लेवल्स नहीं बढ़े थे, तो mm, लेकिन कुछ जने थे जिनके थे, तो वहां पे अडॉप्शन बढ़ा और उसकी वजह से इनकम डिस्पैरिटी ज्यादा बढ़ गई इंडिया में, जो कि right. वी आर सीइंग एट द मोमेंट कि जो लोगों को आता था वो एक का दो चले गए, जैसे अभी हमने बात करी, और जिन लोगों को नहीं आ पाया वो बिल्कुल ही थोड़े से अलग हो गए कि यार ये क्या क्या हुआ, एकदम से समझ नहीं आया। सो व्हाट डू यू थिंक Mm. कि एआई और ऐसे टूल्स जो अभी नए आ रहे हैं, will they be leading towards a more prosperous as a nation, in talking in terms of India, uh, in terms of income disparity that has been created, or do you think they will be acting as a bridge कि भाई it is just like अभी कुछ समय के लिए दिक्कत है and then later on it will get dissolved or something? देखो, मतलब ऐसा नहीं है कि सब काम रोबोट्स ही करेंगे मैन्युफैक्चरिंग हम्म, में, तो इंडिया ने स्ट्रेटेजिकली शिफ्ट कर लिया है कि भाई अपन चाइना प्लस वन या जो भी है, मैन्युफैक्चरिंग इज द की, हम्म, ठीक, तो नाउ वी आर प्लेइंग दैट गेम, हम्म, ठीक, तो दैट विल बी काइंड ऑफ, दैट इज द बस दैट वी हैव मिस्ड, तो मेरे हिसाब से दैट विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर अस, फॉर आवर कीपिंग दैट, जो वो है आपका डिस्पेरिटी, उसे कम करने का, हम्म, ठीक है। और एक आप देखोगे लगभग 40-42% लोग काम करते हैं एग्रीकल्चर में, हम्म, ठीक है, और हार्डली उसका कंट्रीब्यूशन मतलब कितना ही है, मतलब आई डोंट नो, लाइक काफी कम होगा, it's large। है ना, और केवल 0.8% लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं, हम्म, और जीडीपी में contribution काफी ज्यादा है, हाँ, as राइट, compared to men to income proportion, that's true। ठीक है, तो एग्रीकल्चर भी लाइक मैकेनाइजेशन, प्रोडक्टिविटी वहां बढ़ेगी, लोग वहां से निकलेंगे, एंड वी रियली नीड ए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हम्म, तो अपने को हिंदुस्तान में लोगों को एआई पढ़ा के, मतलब आप पढ़ा भी नहीं सकते इतनी जनता को भाई, राइट, यू कैन, you should be, that's the right key that we have, हम्म, you know
started. तो मैन्युफैक्चरिंग इज द गेम. हम्म तो दैट विल बी द होल. तो वहाँ ऐसा नहीं है कि भाई रोड बननी है, ये बनना है, वो बनना है, पीपल विल बी नीडेड, हम्म राइट. तो दैट इज द डेमोग्राफिक डिविडेंड वी हैव, वी नीड टू, एंड गवर्नमेंट एंड देन होल, कोई भी रहे, एवरीवन, एनी irrespective of any political party, people know this and they are working in that direction. या अब एकदम जो ये सेटबैक वगैरह हुआ है, हम्म राइट. तो मतलब यदि आप देखोगे तो ऐसा गेम है कि सबसे पहले ये लेके आए नोटबंदी, हम्म ठीक है, जीएसटी, हम्म ठीक है, उसके बाद एक चीज कोविड आ गया. तो ये 3 इवेंट ऐसे हुए हैं, राइट. तो हमें लगता है स्टॉक मार्केट में, तो इन तीनों चीजों में क्या हुआ है कि, तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ प्लेयर्स इन द मार्केट. वन इज ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनदर वन इज अनऑर्गेनाइज. मैक्सिमम हिंदुस्तान अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है. केवल 2-3 लोग काम करते हैं, कोई टूल बनाने का, कोई स्टील के बर्तन, मतलब लाइक मैनी मैनी काइंड ऑफ थिंग्स. जनरली 2-3-4 लोग ही हैं ऑन एवरेज जो एक टीम में काम करेंगे. दैट इज द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है. अब और देयर आर ऑर्गेनाइज प्लेयर्स. यू कम अप विद, सबसे पहले नोटबंदी हुई, ठीक है. जिनका पास ऑलरेडी कैश था, कैश कहाँ है? कैश तो नॉर्मल जनता के पास है, राइट. एंड दे आर नॉट, यू नो, they do not file income tax and all, but they already have their income. कि भाई वो मतलब 2 भाई मिलके काम करते हैं, 10-20 साल में उन्होंने काम किया तो 50-60 लाख रुपए बना लिए, राइट. और वो सारा कैश में है. अब दे डू नॉट नो, वैसे तो नॉन टैक्सेबल इनकम है, दे हैव नेवर फाइल टैक्स, दे डू नॉट नो हाउ टू फाइल टैक्स, राइट. अब उनका धंधा कुछ टाइम के लिए बंद हो जाता है और पूरी इकोनॉमी बंद हो जाती है उस साइड की, और इधर जो है वाइड वाला गेम और ऑर्गेनाइज प्लेयर्स आर रनिंग. तो पहली मार वो पड़ी. दूसरी मार जीएसटी ने मारी. जीएसटी में एक होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट. अब इनपुट टैक्स क्रेडिट ये है कि आप आपको अपनी, जो आप खर्चा ले रहे हो, अपना मटेरियल यूज कर रहे हो, तो आपकी कॉस्ट का, तो आपका प्राइस कम हो गया आपकी प्रोड्यूस का. तो वो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट अनऑर्गेनाइज सेक्टर ले नहीं पा रहा है, ठीक है. और ऑर्गेनाइज सेक्टर ने ले लिया, राइट. तो उनके प्रॉफिट बढ़ने लगे. फिर आ गया कोविड. तो इन तीनों गेमों के बाद से आप देखोगे कि कहते हैं कि हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट इतनी है, 7%, 8%, राइट. दैट इज मार्केट बढ़े जा रहा है, राइट. दैट इज द ग्रोथ रेट ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड इंडिया. ऑर्गेनाइज सेक्टर इंडिया 1 जो हम बोलते हैं ना, एनसीआर और ये, और वहां एक्चुअली में यदि आप काउंट करोगे ना भैया, नेगेटिव है, राइट. तो ये जितना भी डेटा है और जो भी ये बताया जा रहा है, एवरीबॉडी इज लाइक, तो देयर इज ए ह्यूज डिस्पैरिटी, ठीक है. पर दे आर आल्सो टेकिंग स्टेप्स कि भाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ाओ, ये करो, इन्वेस्टमेंट लेके आओ वहां से, इंडस्ट्री लगाओ, राइट. थिंग्स विल इवन सेम लाइन में मेरे को ये भी लगता है क्योंकि 20% ऑफ द workforce, global workforce on the semiconductors, working on semiconductors is our Indian. हाँ, तो हाँ ये बात सही है. मतलब मुझे ये नहीं पता एग्जैक्ट डेटा, मतलब मैं Yeah, I also just read it, yeah, somewhere. Yeah. हाँ, मतलब सेमीकंडक्टर के बारे में इतना कम, मतलब एआई ऑटोमेशन के बारे में ज्यादा पता है. Whatever I have learned with working with this company like for 4 to 5 years was, yeah, they are huge talent which are the designers and all, ठीक है. तो बेसिकली ये पूरी इंडस्ट्री एक तरीके से मोनोपोलाइज्ड है, मतलब काइंड ऑफ मोनोपोली है. और एवरी सेक्टर हैज, एवरी स्टेज हैज इट्स ओन थिंग. तो होता क्या है कि चिप्स वगैरह जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनते हैं, डिजाइन होते हैं, अल्टीमेटली आपका एप्पल और यूएस, कैलिफोर्निया, राइट, उनको बनवाना है चिप, एनवीडिया और ये सब, ठीक है, इंटेल एंड ऑल, राइट, प्रोसेसर. अल्टीमेटली डिजाइन कहाँ होगा? डिजाइन मोस्टली इंडियंस कर रहे हैं, ठीक है. तो हमारे पास लेबर, मतलब स्किल्ड लेबर है, राइट. फिर डिजाइन हो गया, डिजाइन होने के बाद वो जाता है आपके ताइवान, वहाँ पे 90-95% वो वेफर्स सब वहीं बनते हैं, ठीक है. वहां से बनेगा तो हर किसी का इसमें वो है. और इस पूरी सप्लाई चेन में भी कुछ कुछ है, जैसे
प्रोसेसर बनाएगा, एक कंपनी का कुछ अपना एक्सपर्टीज है, हम्म, दे डू स्टफ ओनली, हम्म, राइट, एंड दे आर द लीडर ऑफ दिस। तो पर ये है कि हाँ, इंडियंस मोस्टली एवरीवेयर, मतलब दे वी हैव द लार्जेस्ट वर्कफोर्स ऑफ स्किल्ड लाइक हम्म, चिप डिजाइन। that's true, that's अब true. मेरी कंपनी का भी मैं बता रहा हूँ तुम्हें भाई, सी मतलब कंपनी, एक एक इसमें क्या है कि चिप डिजाइनिंग जो होती है ना, तो चिप डिजाइन में काइंड ऑफ देयर आर, इट्स अ ड्यूओपोली, मतलब एक तीसरा प्लेयर भी है। सबसे केडेंस है जहाँ पे मैं काम करता हूँ, दूसरी है सिनॉप्सिस, और तीसरी है मेंटर ग्राफिक्स, हाँ सीमंस ने खरीद लिया वो। तो जनरली ऐसे है। तो होता क्या है कि कोई भी, अब टीएसएमसी है, टीएसएमसी को आप डिजाइन दोगे, है ना, उसे बस लिथोग्राफी से छापनी है, प्रिंट करनी है, राइट। तो दे हैव देयर ओन टेक्नोलॉजी, पीडीके स्टैक दैट हैज बीन इम्प्रोवाइज्ड ओवर टाइम, राइट। 3 नोड कम हो गया, 3 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, आप कम जा रहे हो आप, राइट। तो तो आर कंपनी वर्क्स विद देम, वी implement their PDKs in our software for any chip designer uses our software for analog chip Hmm. designing, डिजिटल साइड और पीसीबी कंट्रोल बोर्ड, तो जो भी है, आपको सॉफ्टवेयर चाहिए कंप्यूटेशनल, तो वी वी प्रोवाइड द cadence Hmm. provides, right? Synopsys provides cadence. Synopsys, like they are the American companies, right? But the CEO is Indian, Hmm. right? The he has risen up to the ladder. Hmm. Uh, this like Anirudh, he's from IIT Delhi itself, अच्छा. completed PhD. उसने फिर अपनी कंपनी बनाई, and then small company got acquired, and then he went to Cadence, and then he Hmm. risen up to that, right? And then एंड जो नीचे की भी मुझे थोड़ी सी हायरार्की लगती है, तो इट्स लाइक कि इंडियंस Hmm. राइट अगेन राइजिंग अप। Yeah. ये चीज तो तो. यूएस हैज, इसने जो जितने भी चाइनीज लोग हैं, Hmm. चाइनीज, इनको पहले से एक तरीके का वो करना चालू कर दिया है, बैन, मतलब आई एम नॉट से बैन, बट providing restrictions Hmm. that a train cannot be opened by inside China. So Hmm. चाइना ने भी ऐसा लेना चल दिया कि कोई यहाँ पे डिजाइन बनाएगा तो यहाँ नहीं दिखेगी, राइट। वी डू नॉट वांट टू शेयर आवर इंटरनल आईपीज, Hmm. आईपी कम, और दे, मतलब कुछ कुछ जगह तो ऐसा है कि कुछ पीडी के एक्सेस चाइनीज नेशनल्स को नहीं मिलती है। Hmm. दिस इज यूएस लॉ Hmm. कि तो चाइनीज डिजाइनर हो गया या चाइनीज, तो उन्होंने, तो इट्स मतलब बेनिफिट फॉर अस। It's a diplomacy, yeah, but it's yeah, true. That's true, 100%. Even ये बात मेरे को मेरे एक दोस्त ने भी कही थी जब मैं सिंगापुर गया था. तो ही इज फ्रॉम फिलीपींस. तो वो कहता है कि what happens कि जितने भी लोग, जैसे सिंगापुर इज द फाइनेंशियल कैपिटल लाइक समथिंग लाइक दैट, सो इट्स हैज लॉट ऑफ फंड्स एंड ऑल ऑफ दैट. ही सेड कि जितने भी इंडियंस हैं दे ऑल आर वर्किंग एट अ सीनियर पोजीशन, यू नो. यूएस में जाओगे आप ना, तो मतलब शायद एवरेज कुछ 1 लाख यूएसडी है, हाँ, तो मैंने भी दो पढ़ा. मैंने भी. दो पे, हाँ भाई, वहाँ वहाँ पे मतलब मतलब मैं 2 बार गया हूँ, जब भी ऊबर वगैरह में गया हूँ, तो दे काइंड ऑफ रिस्पेक्ट इंडियंस एज वेल, दे नो कि हाँ आप इंडियन हो, तो मतलब मे बी सम सॉफ्टवेयर का है, कंप्यूटर का है। Hmm. That's true. That's true. 100%. 100%. और सिंस हम बात कर रहे हैं एआई वगैरह की, राइट, हमने ये समझा कि माइक्रो मैक्रो क्या चल रहा है. लेट्स हम्म, लेट्स डीप डाइव इनटू द लॉ एस्पेक्ट एज वेल. क्योंकि अभी वी आल्सो सॉ प्रीवियसली कि डीप फेक्स वगैरह बहुत फेमस हुए थे कि भाई एक हम्म, एक्टर एक्ट्रेसेस के डीप फेक्स जा रहे हैं, सब चीज़ें हो. हम्म, एंड सेम विद द इमेजेस काइंड ऑफ इज हैपनिंग अराउंड. So what do you think कि government is still, having this committee thinking over this, brainstorming different applications, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कैसे करना है, कैसे नहीं. क्या लगता है कि कहाँ पे AI needs to be regulated the most and कहाँ पे AI needs to be regulated the least? देखो भाई, गन्स बनेंगी तो रेगुलेशन तो मतलब हाँ, वो तो. पुलिस, राइट, सिंपल सा गेम है। तो रेगुलेशन भी आपको तैयार करनी हम्म. पड़ेगी, राइट। तो वो तो नॉर्मल है, लाइक, तो इन द सेम वे इसमें एक गवर्नमेंट ऑन द नेम ऑफ रेगुलेशन स्टार्ट सर्विलेंस, हम्म. ठीक है। तो सबसे पहले तो सब बड़े लोग वही करेंगे। हम्म.
ठीक है, चाहे यूएस हो, चाहे चाइना हो, हम्म चाहे वो है, कहाँ घूम रहे हो, आपकी सोशल स्कोरिंग हो रही है, राइट। सेम यही पूरा इधर चालान कट रहे हैं सऊदी अरब में, यहाँ वहाँ दबा के सब कंप्यूटर सर्विलेंस, हम्म ठीक है। तो वो बढ़ेगा और nobody can stop that on the name of regulation, ठीक है। रेगुलेट करना चाहिए, राइट, एंड पर बंद भी नहीं करना चाहिए। वो जैसे ये चीज तो है, बट व्हाट डू यू थिंक कि कहाँ पे सबसे ज्यादा रेगुलेशन होना चाहिए? मेरे हिसाब से एक तो वो है कि मतलब कुछ भी डेटा यूज करके आप बोलो कि दिस इज मॉडल आर्स, हम्म मतलब इतने सारे लोग हैं जिन्होंने, मतलब दिस ह्यूमन क्रिएटिविटी, यार ह्यूमन क्रिएटिविटी, मतलब मैक्सिमम ओशो सुनो, ओशो की एक बात याद आती है कि यार आपने व्हाट यू आर डूइंग एवरी टाइम, हम्म मतलब आपने कुछ नहीं सीखा, सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हो। हम्म वॉट एवर आई एम स्पीकिंग यू आर स्पीकिंग, या आई एम कोटिंग ओशो, तो भैया मैंने ओशो सुना है तो उसकी बात है यार, मैंने बोल दी। हम्म इट्स नॉट लाइक कि भाई मेरी कोई एकदम ही है ना, तो ह्यूमन क्रिएशन हैपन्स एट सम स्टेट ऑफ, वो रियरली होती है, और कर जब जनता करती है तो इट शुड बी रिवार्डेड फॉर इट, हम्म ही शुड बी। तो भाई किसी ने अच्छी किताब लिखी, इतना कुछ क्रिएट किया, आप बोलते हो कि सब ये हमारा। हम्म तो दूसरी चीज रेगुलेशन ये है कि जितना भी ये स्कैम्स हो रहे हैं, हम्म दे शुड बी better tools, better, infrastructure. Company should, government can't do that, हम्म right? तो better ecosystem for startups will be created. हम्म तो फिर उसका यही होगा कि people will एक साइड डीप फेक्स बनाएगी, दूसरी साइड यू नो डीप फेक्स को एनालाइज कर लेगी, हम्म एडिट कर लेगी, फाइंड कर लेगी। एक साइड स्कैम करेगी, दूसरी साइड बेटर वर्जन ऑफ preventing you from scams. Softwares will come, services will come, right? वायरस बनाएंगे तो एंटीवायरस भी बनाएंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंप्यूटर यूज करना या सॉफ्टवेयर यूज करना बंद कर देंगे, राइट। दैट इज द नीड ऑफ द टाइम। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट शुड डू इटसेल्फ मच इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन, बेसिक एथिकल रेगुलेशंस शुड बी देयर, एंड बट स्टार्टअप का जो कल्चर है, इट शुड बी प्रमोटेड। 100%, 100। तो जनता अपना, सोसाइटी अपना डायरेक्शन खुद चूज कर लेगी, हम्म मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एकदम ही इसको रेगुलेट, अब जैसे यूरोपियन यूनियन है, पता नहीं क्या कर रहे हैं हम्म इन्होंने, इतना बैन लगा दिया, तो पता नहीं कुछ था, ओपन ही नहीं थी शायद, वो चैट जीपीटी नहीं चलेगी उधर, पता नहीं क्या गेम चल रहा है। तो दे आर इंटेंशनली, एक तो उनकी सोसाइटी एज कर रही है, हम्म सारे इमिग्रेंट्स घुसे पड़े हैं, और पता नहीं क्या वो किस वर्ल्ड ऑफ टॉक में है कि मतलब, एनीवेज हम्म उसी में देन दे आर कटिंग डाउन कि हमें ये भी नहीं चाहिए, तो हम्म वी शुड एक्सेप्ट इट। That's- कुछ भी हो भाई, अब आप प्रमोट करो, इंडियन टैक्स पे करवाओ, यू नो यू शुड हम्म प्रमोट इट। हम्म अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ वी आर एट दैट लेवल ऑफ, तो अपन देश में ऐसा तो नहीं हो, देश में डेटा बहुत है, दिस इज द हम्म पॉइंट। हाँ, that's, और हर कोई डेटा के लिए भी तैयार है। डेटा है, देने के लिए भी तैयार है, बिल्कुल सही बात है। हम्म और एक चीज और है, हम ऑलरेडी है ना, एक ही बहुत ही लो कॉस्ट इकोनॉमी है। हम्म कोई यूएस चले जाओ बड़े प्यार से, या कहीं भी चले जाओ, मतलब जो जो डिफरेंस है ना, लो कॉस्ट वाला, कोई गेम वहां सक्सेसफुल हो रहा है तो यहाँ सक्सेसफुल होने की चांसेस हम्म बहुत कम है, कोई नहीं है यहाँ सक्सेसफुल हो हम्म जाएगा, लेकिन आप यहाँ सक्सेस कर लिए तो आप बाहर सक्सेस कर लोगे, हम्म ठीक है। तो लो कॉस्ट गेम और इकोनॉमी और मार्केट इतना बड़ा है कि अब उसमें कहो कि एआई भी आ गई, हम्म अब नाउ थिंक, अच्छा चलो हम एआई डेवलप नहीं कर रहे, चलो हम नहीं है रिसर्चर्स नहीं है, बट दे आर फाउंडर्स हु आर at least will use at the application layer. हम्म Let's say Zomato take for example, हम्म या Booking.com, they have their big kind of biggest kind of CRM, या Zomato हो गया, right? And they start using the AI, हम्म their own personal trained model, हम्म PEP and all, right? तो वो तो उस गेम को और ही आसान कर देंगे, है ना, अपने लिए तो उनकी कॉस्ट और कम होती जाएगी, हम्म ठीक है।
अब उनसे लड़ना तो और ही मुश्किल वाला गेम है। तो ऐसे एंटरप्राइजेस और या ऐसे फाउंडर्स जो आप यदि कुछ भी एनी एनी बिजनेस दैट हैज एनी प्लेटफॉर्म बिजनेस दैट हैज डेटा, मतलब वो डेटा पे चलता है या डेटा एक्यूमुलेट करता है और इट स्टार्ट्स यूजिंग द एआई ऑफ इट्स ओन टू मेक इट्स प्रोडक्ट बेटर, और ऑलरेडी साले का कॉस्ट कम है, आपने और कर दिया, तो देयर बी अ ह्यूज डिस्ट्रप्शन। मैं ये कह रहा हूँ, और मैंने चीजें करनी चाहिए। हम एप्लीकेशन लेवल पे ही काम होगा, पर मैं ये नहीं कहना चाह रहा देश में कि हर कोई आ जाता है कि हम एलएलएम चैट जीपीटी की एपीआई यूज कर रहे हैं और हम एक टेक धंधा खोल लेंगे। ऐसे तो हमने एक मॉडल उठा लिया, हम उसमें ये कर रहे हैं, आता है नहीं, कुछ पढ़ा है नहीं कि भाई मैं जो है इसको कैसे डेटा को बढ़ाऊंगा, हाउ विल आई यू नो improvise my offering. I will not be endlessly dependent on ChatGPT or OpenAI, right? They can start something of their own, or they can they can any day, ठीक है, आप कर रहे हो सेम चीज लेके दूसरा भी कर लेगा सेम चीज। तो आपको तो अपना उसमें डालना पड़ेगा ना। इट्स नॉट लाइक हुक एंड क्रोक की मैंने थोड़ा सा यूं कर लिया। तो ट्रेड सीक्रेट तो रहता ही नहीं है टेक में। टेक्नोलॉजी itself is धंधा नहीं है, टेक्नोलॉजी अनेबलर है, ठीक है। धंधा तो ये नॉर्मल धंधा है यार, मतलब चीज है। दैट्स ट्रू। ये चीज तो है, मैं भी इससे एग्री करता हूँ। और इवन लाइक देयर इज माय ब्रदर हु इज अ सीए, लाइक अ सीनियर सीए, सो he is very fascinated by things, you know, what is happening, startups and all of that, राइट business and all of that. So he tells me, like, बताते हैं मुझे कि there are like a brain tattoo that he has given out, right? But then that's a brain tattoo basically. It's kind of a thing कि brain tattoos are basically a line or that thing that you can easily pronounce and that stays in your brain. So I'll give it an example. I'll give it an example. गॉट इट गॉट So he says like A B C D E is gonna change the world. ओके So A is AI, B is blockchain, C is cloud computing, D is data, and E are ethics. राइट So he says wherever A B C D E, when we are able to use this, that's gonna change the world. So अगर कुछ करना है तो around A B C D E है. Sorry? डिमांड मोदी जी के 4D हो गए, डेमोग्राफी। Yeah, so that's kind of a thing. So when we are talking about data, that's 100% true. And even on that aspect, Reliance played a very big on data when he went down 100%, like with Geo or whatever. Even Mr. Nandan Nilekani, if I'm pronouncing the name right, in the podcast, he said like the major revolutions were UPI, Aadhaar, and he also mentioned Geo because of the data penetration that it had. राइट यस Yeah. जैम। What do you? Yeah. Go ahead. तो मुझे लगता है कि हाँ, देखो मैं मॉडल ट्रेन करता हूँ, ठीक है, मैं कोई भी कर सकता है, कुछ है नहीं लिटरली, सारा गेम डेटा का है। 90% of the time is collecting data, gathering data, changing data, augmenting data, making it better। और ट्रेन करने के लिए आपको बस जीपीयू चाहिए, विच यू कैन रेंट ऑल्सो, अपनी कंपनी में है, और देन यू इट हार्डली टेक्स अ वीक, मतलब एक दिन में आप लोअर ऑर्डर पे ट्रेन कर सकते हो, मतलब एक कमोडिटी जीपीयू पे भी कर सकते हो यदि आप ट्रेन करना चाह रहे हो। तो मैं कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी की में मॉडल ट्रेन करना या ये कुछ करना, सारा गेम, योर मॉडल विल बी बेटर ओनली काइंड ऑफ डेटा यू है। That's true. 100%. I agree. I agree. I agree. And just this, this bit of the last notes, but prior, just last thing, the most renowned question that you must have heard everywhere, and will AI beat humans? यार वो ऑलरेडी काफी कुछ जगहों पे करने लगी है। बीटिंग ह्यूमंस तो मतलब चेस में भी यार एआई ऑलरेडी बीट कर ही चुकी है। मतलब एआई क्या, मतलब मॉडल्स वगैरह हैं जो ऑलरेडी, Like in terms of jobs, in terms of opportunities that the people will get. हाँ हाँ तो वो तो है, बट मेन रिकॉन्सिलेशन ये है कि मतलब ठीक है, आई डोंट नो, मतलब फ्री विल है या नहीं है, वेदर वील बी यूजिंग एआई और एआई विल बी यूजिंग अस, मतलब
वो तो काफी बड़ी डिबेट Hmm. है, राइट? बट थिंकिंग कि दिस LLM जनरेशन इज एन इंटेलिजेंस Hmm. इज नॉट इंटेलिजेंस. Hmm. मतलब वो अभी जैसे मैं कहता हूँ, मतलब काफी दूर है इन ए लिमिटेड सेंस. और जैसे सिर्फ आप चेस खेलने के लिए करो तो ठीक है, ऑलरेडी हैव बीटन. बट इन ए जनरल सेंस, Hmm. तो होता है ना आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, Hmm. तो वो जनरल इंटेलिजेंस में बीट होने में यार, अभी खुद दे बोलते हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि 3 साल में ओपन एआई वाला वो भी कुछ वो चल रहा था कि 5 साल या 10 साल दे इंटरनली से. बट आई गेस दे आर द कंपनी दे आर वर्किंग ऑन इट, तो 5 साल 10 साल ये बोल रहे हैं, वो ज्यादा होगा, Hmm. है ना? तो होता क्या है कि आप यदि कोई टाइमलाइन शॉर्ट टर्म में वो करते हो, तो यू ट्राई टू अंडर एस्टिमेट एंड दे हैव द बायस ऑल्सो. Obviously, you when whichever industry you have the bias towards. बायस, तो आपको अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेटेड भी रखना Hmm. है, right? तो ऑलरेडी दे हैव दिस बायस. बट लॉन्ग टर्म वी काइंड ऑफ अंडर, मतलब लॉन्ग टर्म में हम कुछ भी करेंगे तो वी अंडर एस्टिमेट इन द लॉन्ग टर्म एंड ओवर एस्टिमेट इन द शॉर्ट टर्म. Yeah. ओवर एस्टिमेटिंग की 5 साल में सब कुछ हो जाएगा, Hmm. राइट? तो 5 में नहीं, 5 10 ज्यादा ही होगा. Hmm. बट जैसे कुछ सिंपल LLMs में दे कैन डू मैथ. Hmm. 10-15% ही एक्यूरेसी है मुश्किल से. Hmm. ये चैट जीपीटी की इक्वेशन हो गया, ये सब करने पड़ेगा, बिकॉज दे आर नॉट ट्रेन, दे आर जस्ट द पेरेंट्स ऑफ जनरेटिंग द टेक्स्ट. एंड वी आर हम थिंकिंग कि भाई ये जो है ना, एक इट हैज सम सेंस टू इट, राइट? Hmm. इट जस्ट रिपीटिंग द डेटा. Yeah. मतलब एक बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है. मैं बस क्वेश्चन आया है तो उसके नियरेस्ट कहीं से मैंने उठाया और मैंने वहां से उसके नेक्स्ट 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 जनरेट करना चालू किया, Hmm. Hmm. राइट? कि वो इतने सारे टेक्स्ट में से आ रहा है, तो जो मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग है इट्स मिसिंग. वो अभी भी कोई भी टास्क होगा चैट जीपीटी, तो वो उसको ऑफलोड करता है एक प्रोग्राम ड्रिवन, प्रोग्राम असिस्टेड Hmm. लैंग्वेज. मतलब प्रोग्राम में करेगा वो, पाइथन कोड पीछे से कुछ काम करेगा, या कोई थर्ड पार्टी एपीआई यूज करेगा, राइट? वॉल्फ्रेम अल्फा यूज करेगा, वहां से निकाल के लेके आएगा, Hmm. राइट? वहां पे जाके तो उसके बाद जाके होगा. ठीक है, अब दे क्लेम तो कुछ भी हो सकता है. Hmm. अब क्लेम उन्होंने ओवर का क्लेम किया कि भाई पीएचडी लेवल इंटेलिजेंस है. Hmm. वो 10वीं क्लास वाली इंटेलिजेंस है. हाँ ठीक है, 10वीं क्लास तक पहुंच गया है, मैं मना नहीं कर रहा. इल सून बिकम Hmm. बेटर, राइट? बट वो जो एकदम ह्यूमन वो है, मतलब ठीक है उसमें टाइम लगेगा. एंड देयर इज अ डिबेट, आई मे बी रॉन्ग, राइट? बट ये है कि थिंग्स इन अ लिमिटेड सेंस, कि आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट के अंदर यूज कर रहे हो, यू हैव लिमिटेड द ग्राउंड, Hmm. तो वहां पे ऑटोमेशन में काफी यूजेस है और काफी Hmm. फर्क भी पड़ता That's true. That's true. That's true. 100%. 100%. So yeah, I would say that was it. I loved talking. Uh, है. ग्रेट. मेरे को पता भी नहीं लगा like when did it happen. अपना time like calendar invite से cross हो भी चुका है. So that's why I thought कि यार पता भी नहीं लगा. So that was the thing. So इसलिए so yeah, so it was great talking, about AI, Gen, and more different models kind of thing, and also on the government aspects. So yeah, I truly loved whenever we talk. या ग्रेट. नाइस. So, yeah, thank you for the podcast.